Okay, welcome back after break. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है. So just clap for yourselves, everybody. You are doing a good job at sitting so many hours. अपने लिए ताली बजाइए. You're doing a good job sitting and listening. It's difficult, I know. और आप बैठकर सोकर नहीं, बिना सोए सुन रहे हैं. अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग. Yes. So it's difficult to sit 3 hours and listen to somebody. और देखिए 3 घंटे बैठकर किसी को 6 hours, yeah, I know. 3 hours and 3 hours. Yes, 6 hours. My gosh. माफ कीजिए 6 घंटे आप बैठकर सुन रहे हैं. उसके Yeah. लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोग. Yeah. And I know you're trying to put up with these teachers who are trying to finish their portions. और ये बड़ा मुश्किल होता है कि कुछ टीचर अपने ही भाग को खत्म करना चाहते हैं तो बैठा के सुनाएंगे ही आपको. And so we are like, okay, let's do it, let's push. हम तो चलो पढ़ाते हैं, धक्का देते हैं आप. But thank you so much for being patient and journey, enduring and persevering. लेकिन आप सभी का धन्यवाद. आप बड़ी निडरता के साथ में, धैर्य के साथ में इस यात्रा में बने हुए हैं, आंख खोलकर. बहुत अच्छी बात है. So we're talking on the basis of doing healing and deliverance. और हम बात कर रहे थे चंगाई और छुटकारे की सेवकाई के आधारों के बारे में. So what is the first one we said? और सबसे पहला आधार हमने क्या देखा था? किस आधार पे? सबसे पहला आधार कि हम चंगाई और छुटकारे की सेवकाई को करना है. Yes. What are the basis for ministering healing and deliverance? What is the first thing? और सबसे पहला आधार क्या था? Yes, the nature of God. परमेश्वर का स्वभाव. Everyone say nature of God. What is the परमेश्वर का second one? स्वभाव. दूसरा क्या The था? cross. The cross. Yes, और everyone क्रूस. say the cross. क्रूस. The third one. तीसरा The blood of Jesus. The blood of Jesus Christ. और यीशु मसीह का लहू. The fourth one is the blood covenant or the new covenant. और Okay. चौथा जो है लहू की वाचा या नई वाचा है. It's not the fourth one. It's part of I think the blood covenant is also. और ये चौथा Yes. नहीं, लेकिन हाँ लहू की वाचा का ही एक भाग है. So we see that Jesus when he established the new covenant. और हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह ने नई वाचा को स्थापित किया, That means what is the old covenant? इसका अर्थ क्या है कि पुरानी वाचा क्या है? If there is a new covenant, there has to be an old covenant, right? अगर हम कहते हैं कि नई वाचा है तो पुरानी वाचा होनी चाहिए. सही है. So what is the old covenant? पुरानी वाचा क्या है? What is the old covenant? पुरानी वाचा क्या है? Come on, think. Old covenant, new covenant. Simple. और सोचिए, पुरानी वाचा नई वाचा. Old covenant was made when? पुरानी वाचा कब बांधी गई? But when? Yes, loudly somebody. Old Testament, yes, it was made in the Old Testament. That's why it's called the Old Covenant. और पुराने नियम में ही बांधी गई थी, इसीलिए पुरानी कहते हैं. Yeah, and when Old Covenant is referring to Abrahamic covenant, Mosaic covenant and Davidic covenant. और देखिए पुरानी वाचा का अर्थ है अब्राहम के साथ बांधी गई वाचा, मूसा के साथ बांधी गई वाचा और दाऊद के साथ बांधी गई वाचा पुरानी वाचा कहलाती है. So the Old Covenant is what God made in the Old Testament. और पुरानी वाचा जो परमेश्वर ने पुराने नियम पे बनाई थी. New Covenant is what He made in the New Testament. नई वाचा यानी कि वो नए नियम में बनाई गई है. And the New Covenant is far better than the Old Covenant. और जो नई वाचा है वो पुरानी वाचा से कहीं ज्यादा अधिक बेहतर वाचा है. So how do we know that? और हम इसे कैसे जानते हैं? So look at Hebrews 7:22. One of you can read Hebrews 7:22. और आप में से कोई भी एक जन इब्रानी 7 उसका 22 पढ़ सकते हैं. Someone else can read Hebrews 8:6. और कोई दूसरा जन जो है 8 अध्याय उसका 6वां वचन पढ़िए. And one more person can read Hebrews 12:24. और एक और जन जो है इब्रानी 12 अध्याय उसका 24 वचन पढ़े. Hebrews 7:22 first. इब्रानी 7 उसका 22. पर उन याजकों से बढ़कर सेवा यीशु को मिली, क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा का
मध्यस्थ ठहरा और जो जो और Hebrews उत्तम- 7:22. 7:22 7:22. You read 7:22. Okay. You're reading what, my dear? 8:6. Okay, please read 8:6. Yeah. पर उन याजकों से बढ़कर सेवा यीशु को मिली, क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा, जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई थी। So here in Hebrews 7:22, और इब्रानी 7 उसके 22 में it says Jesus may, the surety of a better covenant. और यीशु मसीह जो है एक बेहतर वाचा की श्योरिटी देते हैं। That means the new covenant is based on better, it's a better और covenant. इसका अर्थ ये है कि जो नई वाचा है वो बेहतर वाचा है। And look at Hebrews 8:6. और इब्रानी 8 उसका 6वां वचन देखें। It says that, the new covenant is established on better promises. और वहां पर लिखा हुआ है जो नई वाचा है वो बेहतर वायदों पर आधारित है। And look at Hebrews chapter 12, verse 24. और इब्रानी उसका 12 उसका 24वां पद अगर देखते हैं Let's read that, somebody. और कोई उसे पढ़िएगा। और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। So here we see that who is the mediator of the new covenant? और यहाँ पर बतला रहा है कि नई वाचा का मध्यस्थ कौन है। Yeah, mediator means whom? और मध्यस्थ करने का मतलब क्या होता है, कौन होता है। Sorry? Yes, one who's in between, the person in between. Okay, so Jesus made the covenant between God and man. और मध्यस्थ का मतलब होता है एक व्यक्ति जो मध्य में खड़ा हो, और यीशु मसीह परमेश्वर और मनुष्य दोनों के मध्य में खड़े हुए। And how did he make the new covenant? What does it say there? और कैसे उसने नई वाचा को बनाया, By his किसके द्वारा बनाया। By his blood, yes, by the sprinkling of his blood. और अपने लहू के छिड़के जाने के द्वारा। And what does it say? It speaks of it speaks better things than that of Abel. और वो क्या कहता है आगे कि वो हाबिल के शब्दों से बेहतर शब्दों को बोलता है। 66 On page number 66. और हम पेज नंबर 66 पर हैं। So we see that the covenant that he makes is based on it's a better covenant based on better promises. और देखते हैं कि यीशु मसीह जिस नई वाचा को बनाते हैं वो बेहतर है, बेहतर वायदों के ऊपर में आधारित है। And we will see another incident और हम यहाँ एक और घटना को देखते हैं where we will see that people in the covenant with God, और जहां पर लोग परमेश्वर के साथ में वाचा में हैं, they are called as sons and daughters of God. और वो लोग जो परमेश्वर के साथ वाचा में है वो परमेश्वर के बेटा बेटी कहलाते हैं। And we'll understand an important truth और हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सत्य को समझने की जरूरत है, about the blessings of the covenant. और जो कि वाचा की आशीषों के बारे में है। When Jesus speaks to this Canaanite woman और जहां पर यीशु मसीह इस कनानी स्त्री से बात कर रहे हैं in Matthew chapter 15. और मत्ती उसके 15 अध्याय के अंदर में। So in Matthew chapter 15 is a very interesting story there. और मत्ती 15 अध्याय में एक बड़ी रुचिपूर्ण कहानी मिलती है। A woman from Canaan, और एक स्त्री है जो कनान की है, her daughter is demon possessed, और उसकी बेटी जो है दुष्टात्मा ग्रसित है, and she wants Jesus to heal her daughter. और वो चाहती है कि यीशु मसीह उसकी बेटी को चंगा कर दे। And Jesus is not willing to hear her out, or bring her near him. और देखिए Jesus was not willing to listen to her or let her come near him. और यीशु मसीह नहीं चाहते थे कि वो यीशु के नजदीक आए, यीशु मसीह नहीं चाहते थे कि उसकी बात को सुने। But this woman just imagine just sitting outside near the main door of this building. और कल्पना करके देखिए कि ये स्त्री जो है ये इस भवन के बिल्कुल मुख्य द्वार पर खड़ी हुई है, And she's crying out, "Have mercy on me, O Lord, Son of David. और वो चिल्ला रही है, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, Because my daughter is severely demon possessed." और क्योंकि मेरी बेटी जो है वो दुष्टात्मा से ग्रसित है। And Jesus does not answer her anything. और यीशु मसीह उसके एक बात का
भी उत्तर नहीं देते And the disciples got fed up. और चेले जो हैं वो परेशान हो जाते हैं They come to Jesus और वो लोग यीशु के पास आते हैं and they say, "Arey, Jesus, this lady is shouting and shouting and eating our heads. और वो कहते हैं यीशु मसीह ये महिला चिल्ला चिल्ला कर हमारा दिमाग खाए जा रही है You please say something to her. और कृपया कर इसको कुछ बोले आप Answer her." और उसको उत्तर दें। And then we see और फिर हम देखते हैं that Jesus says, और यीशु ने कहा "I was sent, I was not sent for the lost sheep. और मैं जो है वो खोई हुई भेड़े जो है उनके पास नहीं I was sent only for the Israelites, और वो कहता for the है house of Israel." मैं केवल इज़राइल के घराने को छोड़ और बाहर की भेड़ों के लिए नहीं भेजा गया हूँ। He says, "I was sent only for the lost sheep of Israel." और यीशु कहते हैं कि मैं इज़राइल केवल मात्र इज़राइल की खोई हुई भेड़ों के लिए भेजा गया हूँ। He says, "The house of Israel." और वो कह रहे हैं इज़राइल के घराने के लिए भेजा गया हूँ। That means those people who were in covenant with God. और इसका मतलब है वो लोग जिन्होंने परमेश्वर के साथ वाचा बांधी हुई है। And when this woman heard this, और जब इस स्त्री ने इस शब्द को सुना, बात को she सुना, comes and falls at Jesus' feet and worships him and says, "Lord, help me." और वो यीशु के चरणों पर आकर गिरती है, उसकी आराधना करती है और कहती है प्रभु आप मेरी सहायता करें। And look at what Jesus says in verse 26. और 26वें पद में आप पढ़ सकते हैं कि यीशु मसीह ने उस स्त्री से क्या कहा। Matthew 15:26. और मत्ती उसका 15 अध्याय उसका 26वां पद। Jesus says it's not good to take the children's bread and throw it to the little dogs. और यीशु मसीह ने कहा बच्चों की रोटी को लेकर कुत्तों के सामने फेंकना भला नहीं है। So who is this children? और ये कौन बच्चे हैं? These children are people who are in covenant with God, the Israelites. और ये वो बच्चे हैं जिन्होंने इज़राइल परमेश्वर के साथ में वाचा को बांधा है। And Jesus is saying healing and deliverance is the children's bread. और यीशु मसीह वहां पर कह रहे हैं कि चंगाई और छुटकारा बच्चों की रोटी है। That means those who are in covenant with God, it's only healing and deliverance is for them. और जो परमेश्वर के साथ वाचा में बंधे हुए हैं केवल चंगाई छुटकारा उनके लिए है। Not for those who are outside the और covenant. उनके लिए नहीं है जो वाचा के बाहर हैं। That means this woman was a Canaanite and she was not in covenant with God. और इसका अर्थ है वो स्त्री जो है कनानी है और वो परमेश्वर के साथ वाचा नहीं बांधी है। But you see, this woman is very smart. और आप देखें ये जो महिला है बहुत चतुर महिला She है has a lot of faith. और उसके पास में बहुत विश्वास है। Jesus says, "I cannot take the children's bread and throw it to the और dogs." यीशु मसीह ने उससे कहा कि मैं बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे नहीं डाल सकता। That means she knows Jesus is referring her to as dogs. और इसका अर्थ है कि वो समझ गई कि यीशु मसीह उसे जो है उसकी तुलना कुत्तों से कर रहे हैं। But she says that even dogs eat the crumbs that falls from the table. और वो यीशु को कहती है कि प्रभु कुत्ते भी अपने स्वामी की मेज से गिरे हुए चूर चार खाते हैं। That means even, something you can give to my daughter. और इसका अर्थ है कि कुछ ना कुछ तो आप मेरी बेटी के लिए दे दें। And Jesus is amazed by her faith. और यीशु मसीह उसके विश्वास की बात को सुनकर अचंभित हो And गए। she says, "Woman, great is your faith." और उसने कहा महिला तेरा विश्वास बड़ा है। And her daughter was healed from that very hour. और उसी क्षण में उसकी बेटी जो है वो चंगी हो गई। So we see something very interesting here. और यहाँ पर हम एक बड़ी रुचिपूर्ण बात को देखते हैं। Jesus is saying that healing is a children's bread. और यीशु कह रहा है कि चंगाई बच्चों की रोटी है। That means healing is for only those who are in covenant with God. और इसका अर्थ है चंगाई केवल उन लोगों के लिए है जिनका रिश्ता परमेश्वर के साथ वाचा में बंधा हुआ है। But this Canaanite woman who is an outsider of the covenant, परंतु ये कनानी स्त्री जो वाचा के बाहर है who received healing for her daughter, और जिसने अपनी बेटी के लिए चंगाई को प्राप्त किया, how did she receive healing? और उसने कैसे अपनी बेटी के लिए चंगाई प्राप्त की? Faith, yes, because she had faith. क्योंकि उसके पास में विश्वास था।
Now, when this outsider could receive the healing, और जब ये बाहरी स्त्री चंगाई पा सकती है, how much more you and I who are in covenant with God और आप और मैं जब वाचा में है तो कितना अधिक प्राप्त कर पाएंगे, enjoy the provisions of healing and deliverance. और हम उस चंगाई और छुटकारे के का आनंद उठा सकते हैं। When we just ask with simple childlike faith. और जब हम एक विश्वास से साधारण बच्चे के समान जब परमेश्वर से मांगते हैं। So tell your neighbor, healing is the children's bread. और अपने पड़ोसी से कहिए, चंगाई बच्चों की रोटी है। That means healing is your birthright as a covenant person. और इसका अर्थ है कि जब हमने वाचा बांधी है तो चंगाई मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। As somebody who is in covenant with Almighty God. और एक ऐसा जन जिसने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ में वाचा बांध रखी है। And you must remember this, God does not break his covenant. और आपको हमेशा एक बात याद रखना है, परमेश्वर अपनी वाचा कभी नहीं तोड़ता। God does not go back on his covenant. परमेश्वर अपनी वाचा के पीछे कभी नहीं जाता है। God is not a God who lies. परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर नहीं कि वो झूठ बोले। Because we read this in Titus chapter 1 verse 2. और तीतुस 1 उसके दूसरे वचन में ऐसा लिखा है, That God is truth, he cannot lie. परमेश्वर सत्य है और वो झुटलाया नहीं जा सकता। So when you're praying for yourself, जब आप अपने लिए प्रार्थना करते हैं, or you're praying for someone else, और या तो फिर आप किसी और के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, and you know they are born again, और आप जानते हैं कि वो नया जन्म पाए हैं, then you can say, God, they are part of the covenant. और आप कह सकते हैं कि परमेश्वर वो आपकी वाचा के एक संगी है। And because of that covenant, as part of the covenant, healing is the children's bread, is their right. और वाचा का भाग होने के द्वारा चंगाई जो है उनका रोटी है, बच्चों की रोटी है। And so we are believing on that and we are praying based on और that. हम उस पर विश्वास कर उसके लिए प्रार्थना करते हैं। Another basis for ministering healing and deliverance और देखिए, एक और आधार जो कि चंगाई और छुटकारे के लिए, सेवकाई के लिए, is the word of God. और वो परमेश्वर का वचन है। God works through his word. परमेश्वर अपने वचन के आधार पर कार्य करता है। God creates based on his word. परमेश्वर अपने वचन के आधार पर रचना करता है। God carries out his works based on through his word. परमेश्वर अपने वचन के आधार पर आगे कार्यों को करता या बढ़ाता है। So we see Psalm chapter 33 verse 6 and 9 और भजन 33 उसका 6 और 9 वचन हम देखते says, हैं। by the word of the Lord the heavens were made. और वह कहता है, परमेश्वर के वचन से स्वर्ग की रचना हुई। He spoke and it was done. और उसने कहा और वो हो गया। He commanded and it stood fast. और उसने आज्ञा दिया और वो तुरंत खट गया। So the power of God is resident in his word. और देखिए, परमेश्वर का सामर्थ परमेश्वर के वचन के अंदर में वास करता है। Hebrews chapter 4 verse 12 says, और इब्रानी 4 उसका 12 कहता है, the word of God is living and powerful, परमेश्वर का वचन जीवित और सामर्थी है, sharper than any two-edged sword. और किसी भी दो धारी तलवार से चोखा है। So when God speaks, जब परमेश्वर बोलता है, things are formed, और चीजें उत्पन्न हो जाती हैं, things are created, और रचना हो जाती है, things come into place and order. और चीजें जो हैं वो अपने स्थान पर और नियम अनुसार हो जाती हैं, Healing and deliverance happens. और चंगाई और छुटकारा हो जाता है। And whatever you're looking for, और जो चीज आप खोज रहे होते हैं, whether the things that you want, whether it's in your personal life, your marriage, your family, your children, your job, your vocation, everything, when you speak the word, God's word goes and fulfills it. और जिस किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो आपका व्यक्तिगत जीवन हो, वैवाहिक जीवन हो, आपके कार्य का जीवन हो, पढ़ाई का जीवन हो, कोई भी बात हो, जिसमें भी आप परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, वो जीवित और कार्यरत हो जाता है। Sometimes we sit back और कई बार हम पीछे हटकर बैठ जाते हैं, and we say, I wish I had this. और हम कहते हैं, मैं आशा करता हूं कि मेरे पास होता, I wish this happened. और काश मेरे साथ ये होता, I wish it was like this. और काश ऐसा होता। Don't wish.
और आप आशा मत करिए, Speak God's word. परमेश्वर के वचन की घोषणा करिए। So whichever area in your life और जो भी क्षेत्र आपके जीवन के अंदर में you want to see a breakthrough, आप वहां पर परमेश्वर की बेदारी देखना you चाहते want हैं, to see God move, परमेश्वर को कार्य करते देखना you चाहते want हैं, to see God's blessings, परमेश्वर की आशीष को देखना चाहते you हैं, want to see God providing for you, कि परमेश्वर आपकी आवश्यकता को पूरा करे, वो देखना you चाहते go हैं, to God's word और आप परमेश्वर के वचन को जाने, and you pull out all the scriptures that talks about promises on those words और आप वो सारे वायदों के वचनों को निकालें and you declare it over your life, your situation, your problem, your family, your career, your finances, your children, whatever. और आपके जीवन के अंदर में, आपके परिवार के अंदर में, आपकी नौकरी में, आपके पैसे में, आपके पारिवारिक जीवन में, अपने बच्चे, जिस परिस्थिति में आपको चाहिए उस परिस्थिति के ऊपर में उसे बोलना आरंभ करें। God's word is very powerful. परमेश्वर का वचन बहुत सामर्थी है। God's word does not, when you speak, it does not return to him empty or और void. देखिए, जब आप परमेश्वर के वचन को बोलते हैं तो परमेश्वर का वचन खाली आपके पास बिना कार्य किए लौटता नहीं है, It does not come back to him void. और वो खाली बिना काम किए वापस नहीं लौटता। It achieves the purpose and does the reason for which it goes through. और देखिए, जिस उद्देश्य के लिए वो जाता है उस उद्देश्य को पूरा करता है और फिर आता है। And God's word is truth. और परमेश्वर का वचन ही सत्य है। And God cannot lie. परमेश्वर झुटलाया नहीं जा सकता। So instead of thinking, I wish, declare God's word. और ये सोचते काश मेरे पास होता, इसको सोचने बंद करिए, परमेश्वर के वचन की घोषणा आरंभ करिए। Pull out God's word and keep speaking it over your whatever is your problem or situation. और परमेश्वर के वचन को निकालें। आपकी परिस्थिति कोई भी क्यों ना हो, कोई भी समस्या से क्यों ना गुजर रहे हो, परमेश्वर के वचन की घोषणा करना शुरू कर दें। God's word carries God's healing power. परमेश्वर का वचन परमेश्वर की चंगाई की सामर्थ को लेकर चलता है। Amen. आमीन। God's word carries God's healing power. परमेश्वर का वचन परमेश्वर की चंगाई के वचन को लेकर चलता है। So when you want God to heal and deliver people, और यदि कोई चाहते हैं कि परमेश्वर लोगों को चंगा करे, छुटकारा दे, speak his word. और परमेश्वर के वचन को बोले। You can say, God, you said in Exodus chapter 15 verse 26, you're a God who heals. और आप कह सकते हैं, परमेश्वर निर्गमन 15 उसके 26 में आपने कहा कि आप वो परमेश्वर है जो लोगों को चंगा करते You हैं। said in Psalms that you will forgive all our sins and heal all our diseases. और भजन में आपने कहा है कि आप हमारे सारे अधर्म को क्षमा करेंगे और हमारे सारे रोगों को चंगा करेंगे। We see that even when Jesus wanted to heal people, और हम इस बात को भी देखते हैं कि जब यीशु लोगों को चंगा करना चाहता था, how did he heal the crowds of people who came to him? और कैसे उसने उस पूरी की पूरी भीड़ को चंगा किया जो उसके पास चली आती थी। How did he do it? और वो कैसे करते थे? He just spoke his word. और अपने वचन को बोलने के द्वारा करते थे। How do we know that? Look at Psalm 107 verse 20. और हम कैसे जान सकते हैं? आप देख सकते हैं भजन 107 उसका 20 वचन। Can somebody read that please? और कोई भी पढ़ सकते हैं भजन 107 उसका 20 वचन। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वह पड़े हैं, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वह पड़े हैं उससे निकालता है। So it says here, he sent his word. Who is the he here? और देखिए वो क्या कह रहा है कि वो अपने वचन को भेजता है। वो कौन है? God. God sent his word and healed them and delivered them from all their और destructions. वो परमेश्वर है जो अपने वचन को भेजकर उन्हें चंगा करता है और सारे नाश से उन्हें छुटकारा दिलाता है। God's word is also healing or medicine to our entire bodies. परमेश्वर का वचन हमारी पूर्ण देह के लिए औषधि भी है। So I'm giving you a medicine for your sickness. मैं आपको आपकी बीमारी के लिए एक दवाई या औषधि दे रहा हूँ।
I'm not a doctor. और डॉक्टर तो नहीं हूं मैं। Of course, you can take the medicines that the doctor gives. और डॉक्टर जो दवाइयों को देते हैं हम उनको लेते हैं। But I'm giving you another medicine for healing for your entire body. और लेकिन मैं आपको एक और दवाई दे रही हूँ जो आपकी पूरी शरीर को चंगा कर सकता है। You want to know what that medicine is? आप जानना चाहते हैं वो कौन सी दवाई है? Look at Proverbs 4:20 to 22. और नीति वचन 4 अध्याय उसका 20 से लेकर 22 वचन तक। Look at what it says. और देखें उसमें क्या लिखा है। Proverbs 4:20 to 22. और नीति वचन 4 अध्याय उसका 20 से लेकर 22 वचन तक। What is God's word? परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है? What does it say? क्या लिखा है वहां? What does God's word do for us? और परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या करता है? It gives us life. और वो हमें जीवन देता है। It gives life to those who find them. और जो उसे खोजते हैं उन्हें वो जीवन प्रदान करता है। It's talking about what kind of life? और वो कौन से जीवन के बारे में बात कर रहा है? Huh? What kind of life? और किस प्रकार के जीवन की बात कर रहा है यहाँ वचन? Sorry? Healed life? It's talking about eternal life. और ये अनंत जीवन के बारे में बात कर रहा है। Now, eternal life is not something that you'll experience only when you see Jesus face to face. और देखिए अनंत जीवन का मतलब ये नहीं होता है कि जब हम यीशु से चेहरे से चेहरा देखेंगे तभी उसका अनुभव करेंगे। Yes, we will realize it fully then. और हाँ जरूर हम पूर्णता तभी आभास कर पाएंगे जब हम उसके सामने होंगे। But eternal life is something that you experience the minute you are born again. और अनंत जीवन वो भी है जब हम नया जन्म पाते हैं तब उसका अनुभव हम कर पाते हैं। So the aspects of eternal life you should even experience now. और देखिए नए जन्म का जो अनुभव है उसे अभी हमें जीना है। And what else does it say? The word of God is also what? It brings life and what else? और वो आगे क्या कहता है? जीवन लाता है और क्या लेकर आता है? It's health to your flesh. और सारे शरीर के चंगा रहने का कारण होती है। It's very interesting if you read in Greek, Hebrew. अगर आप इब्रानी भाषा में पढ़ेंगे तो बहुत रुचिपूर्ण शब्द लिखे The हैं। word for health there is marpe. The word for health in Hebrew is marpe. स्मार्ट पे, Marpe. मार्पे। Yes. और इब्रानी भाषा में जो अंग्रेजी हेल्थ के लिए लिखा है, स्वास्थ्य के लिए लिखा है, वो मार्पे शब्द का उपयोग किया गया So है। it means health, it means healing, cure, medicine, और इसका मतलब होता है कि चंगाई, देखभाल, औषधि deliverance and remedy. और छुटकारा और चंगाई। That means God's word और इसका अर्थ है परमेश्वर का वचन affects our entire body और वो हमारे पूरे शरीर पर प्रभाव लाता है। and it brings healing and wholeness. वो हमारे पूरे देह में चंगाई और पूर्णता ले आता है। So I was writing the children's church curriculum for APC Children's Church. और हम एपीसी चर्च के बच्चों का जब पाठ्यक्रम तैयार कर रहे थे, So we are writing all the subjects that are taught in Bible College. We write it for our children's church. और देखिए हम अपने बच्चों के कलीसिया के लिए जब पाठ्यक्रम तैयार कर रहे थे, वो सारी बातें जो बाइबल स्कूल में सिखाते हैं। So when I was writing about healing and deliverance, और मैं चंगाई और छुटकारे के बारे में लिख रही थी I was writing about this, और इसके बारे में लिख रही थी and I was looking for examples to give the children. और मैं खोज रही थी कि बच्चों को कौन से उदाहरण हम देख सकते हैं। And I was amazed to read the testimonies online about how people spoke God's word and they were healed. और मैं अचंभित हो गई ऑनलाइन इन गवाहियों को सुन के कि लोगों ने जब परमेश्वर के वचन को बोला, परमेश्वर ने कैसे अद्भुत उन्हें चंगा कर दिया। So one example I'll give you, two examples I'll give you. और दो उदाहरण मैं आपके सामने रखूंगी। There was a man who, had some problems with his body, especially with his bones. It was deteriorating. और एक व्यक्ति था जिसे उसकी हड्डियों के साथ में समस्या थी, उसकी हड्डियां जो हैं वो सड़ रही थी धीरे धीरे। And the doctor said we can't do anything much. और डॉक्टर ने कहा हम आपकी इस बीमारी का ज्यादा कुछ कर नहीं सकते।
and he was suffering a lot. और उसे पीड़ा और सहन करना पड़ता था। And his wife, और उसकी पत्नी she pulled out all the scripture verses of promises about healing and about bones from the Bible, and she and her husband used to speak that and declare that. और उसकी पत्नी ने बाइबल से जितने भी हड्डियों से, चंगाई से, छुटकारे से संबंधित वचन थे, उन सारों को निकाल लिया और वो दोनों उन्हें बोलना शुरू किया। It's not like meditating, say something like that. It's not like a jadoo you say, you know. It's और not like that. देखिए, ये नहीं था कि जैसे तोते के जैसे रट्टा मार लेते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं, ये वैसा नहीं है, जादू टोना जैसा नहीं है वो। It was meditating on those verses. और वो उन वचनों के ऊपर पे मनन करने लगे। And you know, those verses becoming so much part of you. और वो वचन जो है वो उनके जीवन का भाग बन गए। And when they went to the next doctor's review, और जब वो अगले बार डॉक्टर से मिलने के लिए, मुलाकात के लिए the गए, doctor was shocked because there was so much of improvement in this man's health. और डॉक्टर्स उसको देखकर बहुत अचंभित हो गए, क्योंकि उसके स्वास्थ्य जो है पहले से बहुत ज्यादा बेहतर हो रहा And he was था। totally healed of that sickness. और वो उस बीमारी से पूर्णतः चंगाई भी बाद में प्राप्त कर लिए। Another example, और एक और उदाहरण, there was a teacher who was, you know, teaching these children who are slow learners. और एक शिक्षक थी जो ऐसे बच्चों को सिखा रही थी जो बहुत धीरे सीखते हैं। And the children were having learning disabilities. और वैसे बच्चे जिनको सीखने की क्षमता नहीं है। And she would just start her class every day. और प्रतिदिन जब वो अपनी कक्षा को शुरू करती थी, She would just get the children to recite few memory verses, some Bible verses. और वो प्रतिदिन बच्चों से कहती थी कि बाइबल के कुछ वचनों को याद करना है और उन वचनों को दोहराना है। And she would just tell one verse and the children will just repeat. और बच्चों को वो एक वचन बोलती थी और बच्चे उस वचन को दोहराते थे। She didn't know what impact it's going to bring. और वो ये नहीं जानती थी कि इस कार्य का प्रभाव क्या होगा। But after few months, लेकिन कुछ महीनों के बाद में many parents in that class came और बहुत सारे माँ बाप जो उस कक्षा के बच्चों के थे, to the principal. और वो प्रिंसिपल के पास आते हैं। And they said, we are very shocked because there's such improvement in our children's learning. और वो कहते हैं हम बहुत अचंभित हो गए क्योंकि हमारे बच्चों की सीखने की क्षमता जो है वो बेहतर हो गई है। What is the difference between this class and that class? और इस कक्षा में और दूसरी कक्षा में अंतर क्या है? They're teaching the same thing. और वो लोग एक ही बात सिखा रहे हैं। But the children in this class were growing and improving and their learning skills, they were getting very smart, becoming more like normal children. और ये लोग तो बच्चे जो है जो सीख रहे हैं उनकी क्षमता बढ़ गई है और ये अब जो है समान बच्चों के समान सीखने पा रहे हैं। And the principal calls this teacher. और प्रिंसिपल ने उस टीचर को बुलाया। And what are you teaching the children? और बच्चों को क्या सिखा रही हो? What is your routine? और तुम्हारा दिनचर्या क्या है? So she says, I start off like telling them to, you know, say one verse from the Bible. और उसने बतलाया कि मैं उन्हें शुरू में सबसे पहले बाइबल का एक वचन कहलवाती हूँ। That's the only difference between what this teacher in this class was doing and that teacher was doing in the other class. और केवल यही एकमात्र भिन्नता थी जो दूसरे शिक्षक अपनी क्लास में कर रहे थे और ये जो अपनी क्लास में कर रही थी। And you see this children who are saying this word of God, the word of God is just bringing life and health to them. और देखिए जब ये बच्चे परमेश्वर के वचन को दोहरा रहे थे, परमेश्वर का वचन उन बच्चों के जीवन के अंदर में चंगाई और जीवन को उत्पन्न कर रहा था। Very powerful is God's word. परमेश्वर का वचन बहुत सामर्थी I है। remember in the COVID time, और मुझे याद है कोविड के समय में one of our brothers at APC, और एपीसी में हमारे एक भाई, he was admitted in Baptist hospital. और वो बैप्टिस्ट हॉस्पिटल में भर्ती थे। Many of you know Baptist hospital, you've gone there. और आप लोग बहुत लोग गए होंगे, आप जानते Some होंगे। of you were unwell, have gone to Baptist hospital. और आप में से कुछ लोगों की तबीयत खराब हो गई थी जब आपको जिस अस्पताल में भर्ती किया गया वही So था। his health was really bad. His health was very और bad उनका स्वास्थ्य बहुत बुरा था because of COVID. और कोविड के कारण। So all the main doctors were there, 10 or 11 of them around his bed. और देखिए सारे मुख्य चिकित्सक जो थे 10-11 वो सब उनके बिस्तर के चारों ओर खड़े हुए थे। And you know, they were deciding that his health is really bad, levels are very bad, we'll have to send him to Vellore hospital. और वो बातचीत कर रहे थे कि इनका स्वास्थ्य जो है वो बहुत बिगड़ा हुआ है, उनके सारी चीजें जो है बहुत कम है, तो अब बेहतर
बेहतर होगा कि हम इनको वेल्लूर अस्पताल भेजेंगे। And when he heard that and he saw the doctors, he knew that something's really wrong with his health. और जब उन्होंने सारे डॉक्टर्स को एक साथ में देखा तो वो समझ गए कि जरूर मेरे साथ कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। And just then, Pastor Ashish sent him this message from Romans chapter 8. और देखिए तभी उसी कुछ समय पहले ही पास्टर आशीष ने उन्हें रोमियो 8 से एक वचन को भेजा। I think it's Romans chapter 8 verse, I don't remember that. But I know the verse. It says, if the spirit of him who raised Jesus back from death to life, और देखिए वो वचन ऐसा कहता है कि ये परमेश्वर का आत्मा ही है जिसने यीशु को मृत्यु से जीवन में ले आया। if the same spirit dwells in you, और वही आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। 11, yes. Romans 8:11. और रोमियो 8 उसका So the 11। spirit of him who raised Jesus back from death to life dwells in you. और जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वही तुम्हारे देह में वास करता है। The same spirit would give life to your mortal bodies. और वही आत्मा नाश्वर देह को भी जीवन प्रदान करता है। That means he will quicken life in your mortal body. और इसका अर्थ है कि तुम्हारे नाश्वर जो शरीर है उसके अंदर जीवन को उत्पन्न कर देगा। So the same spirit that raised Jesus back from death to life और वही आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों से जीवित किया lives in you. और वो आपके अंदर रहता है। He will also quicken mortal life in you. और वो आपके अंदर में एक अनंत जीवन को उत्पन्न कर And सकता when he है। read this और verse, जब उन्होंने इस वचन को पढ़ा he was shocked. और वो अचंभित हो गए। He said, this is the first time he's read that verse. और वो कहते हैं कि मैंने पहली बार इस वचन को पढ़ा है। And that verse is very powerful. और ये वचन बहुत सामर्थी है। When I read it the first time, it was so powerful for me as well. और जब मैंने भी पढ़ा था ये वचन तब मेरे लिए भी बड़ा सामर्थी ठहरा। And he just took that verse and he believed it for his life. और उसने उस वचन को ले लिया और अपने जीवन का पूरा भरोसा उसी वचन पर किया। And he's saying in matter of, a few minutes, everything in his body started to change. The levels all started to come to normal. और वो इस प्रकार कहते हैं कि कुछ ही समय लगा, कुछ ही क्षण लगे कि उनके शरीर के अंदर में बदलाव आने लगे। तो सब गिरे हुए स्तर थे वो सारे स्तर जो हैं ठीक होने लग गए। He was not taken to Vellore. और उन्हें वेल्लूर नहीं ले जाया गया। He walked out alive from that ICU. और वो आईसीयू से चलकर बाहर आए। And when he went back for his checkup, और जब वो अपने चेकअप के लिए गए, the doctor says, you are just a living testimony. और डॉक्टर ने कहा आप तो जीवित साक्षी हैं। He says it's all because of Romans 8:11. और उसने कहा कि केवल रोमियो 8:11 के कारण ये So सब that हो पाया। verse is very powerful. और वो वचन बड़ा सामर्थी And है। there are other powerful verses in the Bible. बाइबल के अंदर में और भी कई सारे सामर्थी वचन मौजूद हैं। So speak the word in faith. और विश्वास से परमेश्वर के वचन की घोषणा करें। And even when we are praying for people और इसके साथ जब हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं and we want to minister healing to them, और जब आप चंगाई की सेवकाई करना चाहते हैं bring them to the place of faith और उन्हें एक ऐसे स्थान पर विश्वास के स्थान पर लेकर आए and then minister healing and और deliverance. उसके बाद में चंगाई और छुटकारे की सेवकाई को करें। Look at one nice example in Acts chapter 14 verse 8 to 10. और सबसे अच्छा उदाहरण हम देखेंगे प्रेरितों के काम उसका 14 अध्याय उसका 8 से लेकर 10 वचन तक। Now Paul is in Lystra. और पौलुस जो है वो लिस्त्रा में है। I don't know if it's Paul or Peter, but one of them was in Lystra. और देखिए पौलुस Yeah, just Paul. और पौलुस जो है वो लिस्त्रा में है And he's preaching there. और वो वहां प्रचार कर रहे हैं। And he sees a man who is crippled from his birth. और उसने देखा कि एक जन्म का लंगड़ा वहां पर है। When Paul was preaching, he was listening to Paul very intently. और पौलुस जब प्रचार कर रहा था तब वो लंगड़ा उसको बहुत ध्यान से सुन रहा था। And he knew that he had the faith to be healed because he was listening to the word of God. और पौलुस को ये पता हो गया कि क्योंकि वो बहुत ध्यान से सुन रहा है उसको चंगा होने का विश्वास है। And he says, stand up straight on your feet. और वो कहता है अपने पाँव में के बल सीधा खड़ा हो जा। So immediately the man leaped up and he stood. और तुरंत ही वो लंगड़ा उछल कर अपने पाँव पर खड़ा हो Someone गया। who's never walked all his life started walking. और देखिए अपने जीवन में जो कभी नहीं चला उसने चलना शुरू कर दिया। So what do we see here?
हम यहाँ पर क्या देखते हैं? This man had enough faith because, Paul was preaching and his faith was growing and that faith helped him to get healed. और पौलुस प्रचार कर रहा था, इस कारण उस मनुष्य के अंदर में एक पर्याप्त विश्वास था और उस विश्वास के कारण उसने चंगाई को प्राप्त कर लिया। And also God's word और परमेश्वर के वचन के साथ साथ is one of the weapons God has given us against the enemy. परमेश्वर ने हमें इसे हथियार के रूप में भी दिया है अपने शत्रु के विरोध में। Ephesians chapter 6, we have the armor of God. और इफिसियों का 6वां अध्याय जहां पर हम परमेश्वर के हथियारों के बारे में पढ़ते हैं, Yes or no? हाँ या ना, आप जानते हैं? So one of them is a sword of the spirit. और उन हथियारों में से एक है जो आत्मा का तलवार कहलाता है। And what is the sword of the spirit? और आत्मा का तलवार क्या है? The word of God. और परमेश्वर का वचन। So if you see the enemy is coming against you, और जब आप देखते हैं कि शत्रु आपके विरुद्ध आ रहा है, enemy is putting sickness and disease and confusion and disorder in your home, और जब शत्रु आपके घर के अंदर में रोग, बीमारी, कष्ट, कलेश, समस्याओं को आपके घर में डालता है, then what do? आप तब क्या करते हैं? You take your sword. आप अपनी तलवार उठाते And हैं। what is your sword? और आपकी तलवार क्या है? Raise up your swords, everybody. और अपनी अपनी तलवार आप उठाकर दिखाएं। Yes, this is your sword. और ये आपकी तलवार है, This is the word of God. और ये परमेश्वर का वचन है। And when you speak the word of God, और जब आप परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, Satan flees and he runs. और शैतान डर कर भाग जाता है। The word of God also promises us और परमेश्वर का वचन हमें एक और वायदा करता है that it renews our strength. कि वो हमारे बल को नया करेगा, It promises long life. और वो हमें एक लंबा जीवन प्रदान करेगा। Of course, long life and having a healthy life is also dependent on what kind of food we eat and exercise and getting good rest. और देखिए, लंबा जीवन और स्वस्थ जीवन जो है, इस बात पर भी निर्भर करता है कि हम कैसे स्वस्थ भोजन करते हैं, हम सोते हैं, आराम करते हैं, व्यायाम करते हैं, इस पर भी निर्भर करता है। But it's also walking in faith on what God has provided through his word. और उसके साथ साथ उस विश्वास में भी चलने के द्वारा जो परमेश्वर ने अपने वचन में हमारे लिए दिया है। How many of you want to live long? और आप में से कितने लोग लंबा जीवन जीना चाहते हैं? Some of you putting two hands up. Okay. How many of you want to live a healthy, a life with full strength and vigor? और आप में से कितने लोग एकदम स्वस्थ और बलवान जीवन जीना चाहते हैं, बलपूर्वक जीना चाहते हैं? If you want to, then declare these promises that are on page number 70 and 71. और देखिए, यदि आप चाहते हैं तो किताब में दिए गए 70 और 71 पेज पे जो वायदे हैं, वचन है, उनकी घोषणा करें। So what does it mean? Does it mean that just keep on chanting those words? और No. इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये नहीं है कि केवल हम इन्हीं को दोहराते रहें, रत्तू टोटे के समान बोलते रहें, नहीं। Not like a mantra, और हमें तो मंत्रों के जैसे बोलते नहीं रहना है, but just meditate on it. और लेकिन इन वचनों के ऊपर में हमें मनन करना है, Declare it. इसकी घोषणा करना है। When I wake up in the mornings, आप जानते हैं, जब मैं सुबह उठती हूँ, I find it very difficult because I don't have the strength to. और मैं बहुत मुश्किल होता है मुझे बिस्तर से खड़ा होना, क्योंकि बल नहीं होता है। Or when I face a problem, और जब मैं समस्या का सामना करती हूँ, or when I face a difficulty, और जब मैं समस्या का सामना करती I हूँ, always declare God's word. और मैं हमेशा परमेश्वर के वचन की घोषणा करती हूँ, I declare all the promises on strength, और परमेश्वर के बल के ऊपर जितने वायदे हैं, उन सब की घोषणा करती हूँ, on healing. और चंगाई के बारे में। Even last evening, कल शाम को भी, when I went back home, I was running high temperature. और जब मैं कल घर पहुंची तो मुझे काफी तेज बुखार था, I was having a throat and I don't know if it's a throat and chest infection. और शायद मुझे गले और छाती में इन्फेक्शन हो गया, And I was having severe body pain. और मेरी देह में, शरीर में बहुत दर्द था। And I just
prayed. I said, God, how do I have to go teach today, right? और मैंने कहा प्रभु कैसे होगा, कल जाके मुझे सिखाना है I can't miss. और मैं इसे छोड़ नहीं सकती। That was my worry. और मेरी चिंता वो थी And I started declaring God's और मैंने promises. परमेश्वर के वायदों की घोषणा करना शुरू And I की। said, God, I'm teaching, ministering, healing, and और deliverance. मैंने कहा प्रभु मैं तो चंगाई छुटकारे की ही शिक्षा दे रही हूँ And I'm here now, have to, I have to exercise that in my life. और मैंने कहा प्रभु अब यहाँ हूँ और इन सारी शिक्षाओं को मुझे अपने जीवन के अंदर में अभी अभ्यास भी करना And I है। was having such high temperature, my body was shivering और yesterday. मुझे बहुत तेज बुखार था, मेरा शरीर जो है वो कांप रहा In the था morning when I got up, I was having temperature. और जब सुबह मैं उठी तब भी मुझे बुखार था But just declaring God's word. और परमेश्वर के वचन की घोषणा कर रही You see थी। how powerful God's word is? और आप देखें परमेश्वर का वचन कितना सामर्थी है। Also, another basis for ministering, healing, and deliverance is the Spirit's power. और देखिए एक और आधार है चंगाई और छुटकारे की सेवकाई करने का, वो है आत्मा का सामर्थ्य। Did you know the Holy Spirit is the giver of life? और आप जानते हैं कि पवित्र आत्मा जीवन का देने वाला है। We read that in Romans 8:11. और हम रोमियो 8 उसके 11 में इस पद को पढ़ते हैं। He gives life to our mortal bodies. और वो हमारे नाश्वर शरीर में जीवन प्रदान करता है। That means the Holy Spirit heals, strengthens, sustains, energizes our mortal bodies. और इसका अर्थ है कि पवित्र आत्मा हमारे नाश होने वाले शरीर के अंदर में बल प्रदान करता है, चंगाई प्रदान करता है, जीवन प्रदान करता है, नयापन प्रदान करता है। So while we do our part in taking care of our bodies, और जब हम अपने भाग को निभाते हैं, हम अपने देह की देखभाल करते हैं we depend on the Holy Spirit और हम पवित्र आत्मा के ऊपर में निर्भर होते हैं to give life to our mortal bodies, कि परमेश्वर हमारे नाश होने वाले शरीर को जीवन प्रदान करे, to live the full course of our life कि हम अपने अपने पूरे जीवन काल को जी पाएं and complete everything God has assigned for us here और on the जो earth. कुछ परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर हमारे करने के लिए निर्धारित किया है उसे करने पाएं। So when you're praying for somebody, और जब हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं other than just using the nature of God, और हम परमेश्वर के स्वभाव का इस्तेमाल करते हैं the cross, और हम क्रूस का इस्तेमाल the करते हैं blood of और Jesus, यीशु के लहू का the blood covenant, और वाचा का we use the word of God, और परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करते you हैं declare God's words, और हम परमेश्वर के वचन की घोषणा करते हैं and you also say, Holy Spirit, you're the giver of, you're the one who energizes, strengthens, and quickens life. So quicken life in this mortal और body. उसके साथ हम ये भी कहते हैं पवित्र आत्मा आप ही है जो जीवन को देते हैं, आप ही है जो इस शरीर के अंदर, नाश होने वाले शरीर के अंदर में जीवन उत्पन्न कर सकते हैं, तो आप इसमें जीवन उत्पन्न करिए। So some of you might be saying, hey, I don't know what to pray for when I'm praying for people, when they want healing. और आप में से कई लोग इस बात को कह सकते हैं कि जब किसी को चंगाई चाहिए और आप प्रार्थना करें तो मैं क्या कहूं, कैसे करूं? So you can pray based on all of these things. और इन सभी आधारों पर आधारित आप प्रार्थना कर सकते हैं। Amen? आमीन। Can you do that? करेंगे। Okay, we're going to we're not just going to learn, but we are going to exercise. और देखिए अभी हम इसका अभ्यास करेंगे। Okay, you have kingdom authority and power, all of you, yes or no? और आप सभी के पास में राज्य का अधिकार और सामर्थ्य है You या have नहीं the है? word of God, आपके पास परमेश्वर का वचन है या नहीं? the finished work of the cross, और मसीह का क्रूस पर पूरा किया हुआ काम है the blood, और लहू है and the covenant. और वाचा है So use these things और इनका इस्तेमाल करिए and just pray. और प्रार्थना करें। So we are going to ask those of you who are having some sickness in your body to stand up. और हम आपसे कहना चाहते हैं यदि आपके शरीर में कोई भी समस्या है, कोई भी तकलीफ है, आप खड़े हो जाएं अपनी जगह पर। जिस किसी को भी है, Yeah. जिस किसी को भी अपने शरीर में कोई तकलीफ है या कोई बीमारी है, आप खड़े हो जाएं। Online students, if you want to leave, you can leave. We'll continue next week. We'll just do a practical thing about what we learned, and then so I'll see you all tomorrow. Thank you all for joining class. और ऑनलाइन वाले जो अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो आप छोड़ सकते हैं, फिर दोबारा से कल मिलेंगे। अभी हम कुछ व्यवहारिक बातों को यहाँ कर रहे हैं। Thank you. धन्यवाद आप सभी का।